کہ آج کا جو میسیج ہے وہ ڈیلیورنس کا میسیج ہے کہ خداوند آپ کی سلیپنگ لائف کو، سونے والی زندگی کو خداوند چینج کرنے والا ہے یسوع کے نام سے، خداوند چینج کرنے والا ہے یسوع کے نام سے، یہوہ آپ یسوع کے نام سے، یہوہ آپ یسوع کے نام سے۔ آج کا میسیج میری زندگی کے لیے رہائی ہو، میرے سونے والی زندگی جو ہے کہ جب میں رات میں سوؤں، دن میں سوؤں، آپ کی ڈیلیورنس سے میں جب بھی میں سوؤں خداوند تیرے انجل مجھے وزٹ کرے اور آج سے ڈیمونک پاور چل کر بس سمجھ جائے جو میرے پیلوں پر اٹیک کرتی ہے، میرے ہیڈ پر اٹیک کرتی ہے، میرے سوتے پیپر میں بیج بو جاتی ہے، میرے مائنڈ کو اریسٹ کیا ہوا ہے، آج بالکل کی آپ کے ساتھ چل کر میں سمجھ رہا پاور سے تعریف پر دعا میں رکھتی کرے گا نمستی کو رمشتہ کو جبو کو رمشتہ کو رمشتہ کو نمشتہ every power to disturb the sleeping life. Oh Lord, I destroy this demon with the Holy Ghost fire. In the name of the Lord, we are in a good every demon, nine demon, destroy the Holy Ghost fire, destroy the Holy Ghost fire. یا باپ یسوع کے نام سے کوئی بھی جانے انجانے میں میں نے نیگیٹو بات سنی ہے یا میں نے سوچی ہے یا مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے جانے انجانے میں مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے، خدا آپ نے میرے یسوع کے لہو سے مجھے دھو دے، تیرا لہو مجھے پاک کرے اور میں دوبارہ گناہ نہ کروں باپ یسوع کے نام سے آمین۔ آپ کی زور تعالیٰ میں قرآن سے بھی مقادر پاکر کی دعوت دیں گے آج قرآن کرنے کے زور تعالیٰ میں ہاللیلویا۔ اتنوں نے میری وائس کو اوبے کیا ہے، ہاللیلویا۔ آج سب سے کمپلیکیٹڈ، کرٹیسائز، ڈیفیکلٹ منسٹری جو ہے وہ پروفیٹک منسٹری ہے، آمین، ہاللیلویا۔ جب آپ سمپل تھیولوجیکل پریچر ہوتے ہیں، آپ سمپل میسیج سناتے ہیں اور لوگ تالیاں بجاتے ہیں، چندہ ڈالتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں حاضری لگا کر، پر ان کی لائف میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، آمین۔ اسی طرح کھڑے رہیں گے، ہم ایک آیت پڑھیں گے ایونجلسٹ فاضلہ کے ساتھ مل کر، اس کی 3 حصے تھی۔ اسی سبب سے میں پھرتے تم غیر قوم والوں کی خاطر، تم غیر قوم والوں کی خاطر مسیح یسوع کا قیدی ہو، مسیح یسوع کا قیدی ہو۔ آگے شاید تم نے خدا کے اس فضل کے انتظام کا حال سنا ہوگا جو تمہارے لیے مجھ پر ہوا، یعنی یہ کہ وہ بھید مجھے مکاشفہ سے معلوم ہوا، وہ بھید مجھے، the mystery was revealed unto me۔ بہت ساری مسٹریز ہیں، جب وہ مسٹریز انویل ہوتی ہیں آپ کی زندگی برکت پاتی ہے، ہاللیلویا۔ اوکے، پڑھے گا
वो पॉल कह रहा है मिस्ट्री मुझ पर रिवील हुई है। आगे चुनाचा मैंने पहले उसका मुख्तसर हाल लिखा है, जिसे पढ़कर तुम मालूम कर सकते हो कि मैं मसीह का वो भेद इस कदर समझता हूँ। आमीन। वो मुख से ग्लिम्स दे रहा है, सारी डिटेल नहीं दे रहा, लेकिन वो ये बता रहा है कि वो झलक दे रहा हूं, जो मुख से बयान कर रहा हूं, तुम्हें इससे अंदाजा लग जाएगा कि मुझे इससे ज्यादा बातें खुदा ने रिवील की हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ओके, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। जो और जमानों में बनी आदम को इस तरह मालूम ना हुआ था, जिस तरह उसके मुकद्दस रसूलों और नबियों पर रूह में अब जाहिर हो गया है, यानी ये कि मसीह यीशु ने गैर कौमों में खुशखबरी के वसीला से मिरास में शरीक और बदन में शामिल और वादों में दाखिल हो। आमीन। जब तक मिस्ट्रीज आप पर ओपन नहीं होगी, आप बहुत सारी वादे की बरकतों में शामिल नहीं हो सकते। आमीन। गॉस्पल की 7 डायमेंशंस है। पाकिस्तान की कलीसिया सिर्फ निजात की गॉस्पल जाती है, जिसे गॉस्पल ऑफ सैल्वेशन कहते हैं। आई रिपीट, पाकिस्तान की कलीसिया, पूरी कलीसिया जिस गॉस्पल को जानती है वो सिर्फ गॉस्पल ऑफ सैल्वेशन है, पर गॉस्पल के 7 दर्जे हैं, जिसमें खुद यीशु ने अपने मुंह से कहा, यूहन्ना ने अपने मुंह से कहा गॉस्पल ऑफ द किंगडम, गॉस्पल ऑफ सैल्वेशन। पॉल ने अपने मुंह से कहा गॉस्पल ऑफ ग्रेस। हालेलुया। इसी तरह यीशु ने अपने मुंह से कहा गॉस्पल ऑफ डिलीवरेंस। आमीन। तो गॉस्पल के पार्ट्स है। निजात की गॉस्पल के अंदर सिर्फ ये है कि यीशु मसीह निजात देता है, खुदावंद है, और उसके अलावा कुछ नहीं, उसमें कुछ नहीं है। पर किंगडम की गॉस्पल में कुछ और डिटेल है, ग्रेस की गॉस्पल में कुछ और डिटेल है, और डिलीवरेंस की गॉस्पल में कुछ और डिटेल। आमीन। तो फुल गॉस्पल तब बनती है, किसी ने मैंने अपनी मिनिस्ट्री का नाम या चर्च का नाम या डिनोमिनेशन का नाम फुल गॉस्पल रखा हो, पर उनको फुल गॉस्पल पता नहीं है। ये मैं चैलेंज कर रहा हूं, उनको फुल गॉस्पल पता नहीं है। गॉस्पल ऑफ द किंगडम एक अलग चैप्टर है, गॉस्पल ऑफ ग्रेस एक अलग चैप्टर है, गॉस्पल ऑफ सैल्वेशन एक अलग चैप्टर है, और गॉस्पल ऑफ डिलीवरेंस एक अलग चैप्टर है। पर आज जो चैप्टर मैं खोलने वाला हूं, आप बरकतों के वारिस होंगे यीशु के नाम से। जब तक मिस्ट्रीज डिमिस्टिफाई ना हो, अनफोल्ड ना हो, डिकोड ना हो, लोग मिरास के वारिस नहीं हो सकते। पर आज की सर्विस में बहुत सारे लोग अपनी मिरास के वारिस होंगे, अपनी मिरास के वारिस होंगे। आइए डायरेक्टली खुदा के कलाम की तरफ चलेंगे। हम पढ़ेंगे पैदाइश की किताब 28 बाब 11 से 18 एवेंजलिस्ट खालदा के साथ और पास्टर उस्मा के साथ पढ़ेंगे। हिजकिय्याह 13 बाब 20 आयत, इसके 13 बाब 20 आयत बाद में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे पैदाइश की किताब 28 बाब 1 से 11 से 18। इसी तरह खड़े रहेंगे, गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। जो ऑनलाइन मेरे सन्स एंड डॉटर मेरे पास्टर्स देख रहे हैं, जो 22 न्यू लीडर ऑर्डेन की हैं, आपकी टीचिंग की ये पहली क्लास है। और एक जगह पहुंचकर सारी रात वहीं रहा, और एक जगह पहुंचकर सारी रात वहीं रहा, क्योंकि सूरज डूब गया था। और उसने उस जगह के पत्थरों में से एक उठाकर अपने सरहाने धर लिया और उसी जगह सोने को लेट गया। और ख्वाब में क्या देखता है कि एक सीढ़ी जमीन पर खड़ी है और उसका सर आसमान तक पहुंचा हुआ है, और खुदा के फरिश्ते उस पर से चढ़ते उतरते हैं, और खुदावन उसके ऊपर खड़ा कह रहा है कि मैं खुदावन तेरे बाप इब्राहिम का खुदा और इसहाक का खुदा हूँ। मैं ये जमीन जिस पर तू लेटा है
तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा और तेरी नस्ल जमीन के बीच के गर्द के जर्रों की मानिंद होगी और तू मशरिक और मगरिब और शुमाल और जुनूब में फैल जाएगा और जमीन के सब कबीले तेरे और तेरी नस्ल के वसीला से बरकत पाएंगे और देख मैं तेरे साथ हूँ और हर जगह जहाँ कहीं तू जाए तेरी हिफाजत करूँगा और तुझको इस मुल्क में फिर लाऊंगा जो मैंने तुझसे कहा है कि जब तक उसे पूरा न कर लूँ तुझे नहीं छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा कि यकीनन खुदावंद इस जगह है और मुझे मालूम न था और उसने डर कर कहा ये कैसी भयानक जगह है। तो ये खुदा के घर और आसमान के आस्ताने के सिवा और कुछ न होगा। और याकूब सुबह सवेरे उठा और उस पत्थर को जिसे उसने अपने सरहाने धर लिया था लेकर जैतून की तरह खड़ा किया। Amen. Sit down and never go down. आज teaching with preaching होगी. I will go very fast, I will go very slow. अपने भाई से याकूब यीशु से हरासा होकर भाग है और कई किलोमीटर उसने सांस नहीं लिया। उसे मौत का डर था, उसे अपने भाई यीशु का खौफ था और वो भागा है और लूस की सरजमीन में पहुंचा है जिसका पुराना नाम बैतेल था। हालेलुया। ये बाइबल बड़ी डीप किताब है। गूगल में मैंने एक डीप इंफॉर्मेशन आपके लिए निकाली हुई है, वो मैं भी पढ़ूंगा वर्ड टू वर्ड। आज इसको एक्सप्लेन करने से पहले, आज लंदन में, अभी वहां से लंदन से शिफ्ट करके उसको स्विट्जरलैंड कर दिया गया, कॉरोनेशन चेयर किंग एडवर्ड ने बनवाई। तकिया जब हम रखते हैं, हम सोते, आई एम देखेंगे दूसरा रेफरेंस जो मैंने कहा, हम पढ़ेंगे हिजकिय्याह 13:20। खुदा यूं फरमाता है कि देखो मैं तुम्हारी गद्दियों का दुश्मन हूँ। देखो मैं तुम्हारी गद्दियों का दुश्मन हूँ। कोई इंग्लिश में भी पढ़ते ताकि आपको समझ आए कि मैंने खुद से कोई मिस्ट्री नहीं, बाइबल की बैकअप के साथ है। ओके। Therefore thus saith the Lord God, behold, I am against your pillows, wherewith they hunt the souls to make them fly, and I will tear them from your arms, and will let the souls go, even the souls that ye hunt to make them fly. Amen. आमीन। खुदावंद एक बेजान चीज के बारे में नबी हिजकिय्याह की मार्फत कलाम कर रहा है। I am against pillows, मैं तकिए के खिलाफ। तो कोई भी नुक्ता बाइबल में, कोई भी शोशा, कोई भी जुमला बेफायदा नहीं, बेकार नहीं है, जोक नहीं है, मौकरी नहीं है, उसका कोई मतलब है। और ये भी समझ लें, आपकी थियोलॉजी को थोड़ा सा मैं शेक करूं, बाइबल में हर वर्ड खुदा का भी नहीं। हाँ, तूने लिया, तूने दिया, तेरा नाम मुबारक हो, ये खुदा का कलाम है। इसका कलाम ये याकूब की सोच है, अय्यूब की सोच है। तूने लिया, ये खुदा ने नहीं किया। खुदा जिसको देता है, बाइबल में लिखा है द गिफ्टिंग ऑफ गॉड इज अनरिवोकेबल। खुदा जिसको तोहफा देता है, जिसको नेमत देता है, दोबारा वापस नहीं लेता। इवन उसने लूसीफर को वर्शिपर का गिफ्ट दिया है, वर्शिपर की अनॉइंटिंग दी है, उसने उससे वापस नहीं ली। आज देखें दरबारों पर, मजारों पर, आज देखें मंदिरों पर क्या हो रही है, वर्शिप उसने वापस नहीं ली। खुदा जब देता है वो वापस नहीं लेता। वो चीज करप्ट हो गई है पर खुदा ने वापस नहीं ली। जो गिफ्ट आप खुदा के लिए इस्तेमाल नहीं करते वो करप्ट हो जाता है, लेकिन खुदा वापस नहीं लेता। अय्यूब जो कह रहा है तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम मुबारक हो, वो फ्रस्ट्रेशन में बोल रहा है, वो उसकी अपनी सोच है, वो उसका अपना फेथ है। और बाइबल में लिखा हुआ है इन पत्थरों से कह के रोटी बन जाए।
किसके अल्फाज है? हाँ? कुछ पास्टर नहीं समझते, उनका लेवल नहीं है, पर मेरी कलीसिया का लेवल उनसे अबव है। मैंने कहा बाइबल में हर वर्ड खुदा का वर्ड नहीं है, इसमें कुछ लोगों के वर्ड है, इसमें कुछ नबियों के वर्ड है, इसमें इवन शैतान के वर्ड है, इसमें खुदा के भी वर्ड है। आमीन। समझ आ रही है आपको? आपको ऑफेंड तो नहीं कर रहा? आमीन। मैं आपको मैच्योर कर रहा हूं, आपको समझ आए। जैसे एक पास्टर था और वो बाइबल पढ़ना नहीं जानता था, उसको बड़ा शौक था मैं पावर लूं, मैं पावर लूं, मुद्दे जिंदा करूं, बदरुए निकालूं, लोग स्लेन हो। तो वो दुआ में ठहर गया कमरा बंद करके, अपनी बीवी को कहता जब तक यीशु नहीं आएगा तू बुआ नहीं खोल, मैं अंदरों कुंडी डाली तू बाहरों कुंडी डाल। और दुआ में चला और शैतान आया, उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। ब्लैक हैट, ब्लैक कोट, सिल्वर ब्रीफकेस, लंबा चौड़ा, गोरा चिट्टा, नीली आंखें, लंबी नाक, लंबे लंबे शूज। आदमी आया, बारिश हो रही, दरवाजे पर दस्तक हुई है। उसने कहा इस घर में जॉर्ज नाम पास्टर है। उसने कहा हाँ है, तुम कौन हो? मुझे जॉर्ज से मिलना है, जॉर्ज दुआ कर रहा है, उसे चर्च की बिल्डिंग के लिए इतने $1 चाहिए, मैं लेकर आया हूं। बीवी हैरान हो गई, एक गोरा चिट्टा, लंबी नाक, पीली आंखें, लंबे शूज, लंबा कोट, हैट, ये कौन है? उसने दरवाजा खोला, उसको चाय कॉफी दी, हस्बैंड का दरवाजा खटकाना शुरू हो गया। पास्टर साहब दुआ बंद कर दो, दुआ सुनी गई। बाहर बंदा आ गया है और वो पास्टर साहब ही निकले, आमने सामने बात हुई। उसने कहा ये ब्रीफकेस तेरा है, मैं तुझे देने आया हूँ, तू इतनी दुआ कर रहा था। उसने कहा हाँ जी, मैं इतने $1 भी मांग रहा था, पावर भी मांग रहा था, मैंने पूरी दुनिया में मनाती करनी है। ओके? उसने कहा ये छुरी पकड़, जिससे तेरी बीवी मुझे देखकर गई है, ये केक काटना चाय के लिए लेकर आई है, इससे अपनी गर्दन काट दे। कलाम में लिखा हुआ है जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। ये ताज मैं ले आया हूँ, $millions इस सिल्वर ब्रीफकेस में तेरे हैं, जरा मुझे टेस्ट दे। उसने ना हाव देखा ना ताव देखा, बीवी बच्चों के सामने छुरी कर अपनी गर्दन काट दी और मुर्गे की तरह फड़क रहा है। वो बंदा हंस रहा है, टांग पर टांग रहा है, वो हंस रहा है। उसकी बीवी कह रही है इसको बचा, इसको बचा, वो हंसी जा रहा है। उसका हंसना इतना खतरनाक था कि उसके बीवी बच्चों ने फटाफट उसको कुछ माला, अस्पताल लेकर गए और उसके बाद वो बंदा ब्रीफकेस लेकर लाइव हो गया। तो अस्पताल चले गए, वहाँ और भी पास्टर है, उनके पास सब क्या माजरा पेश आया आपके साथ? उसने कहा हमारे घर बारिश वाले दिन कोई इंसान फरिश्ता बन के आया, नोट लेकर आया, ये उसने कहा वो खुदा का फरिश्ता नहीं था। बाइबल में लिखा है कि प्लीज नूरानी फरिश्ते का हम शक्ल बन जाता है, प्लीज नूरानी फरिश्ते का हम शक्ल बन जाता है। यीशु इसलिए आया है कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ। जोर लगा लीजिए हालेलुया। अगर शैतान का सबसे बड़ा टूल बातों को ट्विस्ट करना है, शैतान का सबसे बड़ा टूल डिसेप्शन है, मैनिपुलेशन है। आज वो बातों को ट्विस्ट कर देता है, आपको पिक्चर का दूसरा रूप दिखाता है। आपने मीडिया पर एक देखी होगी पोस्ट, कोई किसी को चाकू मार कर चला गया, कोई चाकू निकाल रहा है, तस्वीर ऐसे खींची गई है, लग रहा है यही चाकू मार, और पता नहीं ऑलरेडी किसी की छाती में चाकू लगा हुआ है। वो बंदा उसकी हेल्प के लिए गया, उसने चाकू निकाला है, मीडिया वाले ने ऐसे तस्वीर खींच दी कि लगा इसने चाकू निकाला नहीं, इसने चाकू मारा है। हालेलुया। आप खड़े हुए, आपके आगे 6 लिखा हुआ है, जो दूसरी साइड पर खड़ा है उसको 9 नजर आए। देखने का एंगल फर्क है। तो शैतान जो है बातों को ट्विस्ट करने में मास्टर है, बातों को ट्विस्ट करने में मास्टर है। और आज के कलाम से जो कोई भी डेस्टिनी ट्विस्ट की गई है, डाइवर्ट की गई है, मैं उसे ओरिजिनल डायमेंशन पर लेकर आने वाला हूं, 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 यीशु के नाम से।
यीशु के नाम से, हालेलुया। तो उसने क्या कहा, मैं तकिए का, पूरी बाइबल में यहोवा खुदा ने किसी को नहीं कहा कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूं, सिर्फ उसने कहा मैं अमालीक का दुश्मन। घर जाकर टाइम मिले, खरूज 17 बाब सारा पढ़िएगा, वहां आपको मिलेगा। उसने कहा मैं अमालीक का दुश्मन हूं। उसके बाद हम जाकर हिजकिय्याह के चैप्टर में 13वें बाब 20वें जो भी हमने पढ़ी है उसमें देखते हैं, उसने कहा मैं तकिए का दुश्मन। क्यों दुश्मन? डिटेल पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, क्या वजह है। जिनसे तुम जानों को परिंदों की माने शिकार करती हो, जिससे तुम जानों को परिंदों की माने शिकार करते हो। और पिलो जो है, तकिया जो है, ये डिमोनिक वर्ल्ड का ट्रैप है। ये मैं एक्सपोज कर रहा हूं। शायद यहां से कोई जाकर कलाम को ट्विस्ट करे, मरोड़े तोड़े और पास्टरों के साथ बैठकर मेरा ठट्ठा उड़ाए। लेट देम डू, आई डोंट केयर। पर मुझे पता है जो मेरे लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, बरकत को रिसीव करेंगे, बरकत को रिसीव करेंगे, बरकत को रिसीव करेंगे। हालेलुया। मैं सीयर हूं बाय बर्थ, मुझे किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आई एम अ सीयर। बेटी मोल जानती है व्हाट हैपेंड यस्टरडे। इसके आने से पहले जो ख्वाब इसने 4-5 दिन या 2 दिन पहले देखा, इसने पूरी डिटेल देखी, क्योंकि शैतान ने वो एजेंडा इसके लिए तैयार किया। पर खुदा का रूह, क्योंकि मैं हिजकिय्याह की किताब पढ़ रहा हूं, हिजकिय्याह का एंजल आया और मुझे पाताल में ले गया। वीडियो भी है, ऑडियो भी है, मैं आपको सुनवाऊंगा, इसको यकीन नहीं होगा। पाताल में ले गया। पाताल में उसने मुझे एक कमरा दिखाया, उस कमरे के अंदर बेतहाशा गिफ्ट्स पड़े हुए हैं, तोहफे, बाहर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। और वो कौन लोग हैं जो दूसरे लोगों पर जादू करवाने गए हैं। किसी के बाल हैं, साथ उनका सैक्रिफाइस है, किसी के नेल है, किसी के लिपस्टिक है, किसी का मेकअप है, किसी की शर्ट है, किसी के जूते हैं, किसी का दुपट्टा है, किसी के कपड़े हैं, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। पूरा स्टोर हाउस मुझे दिखाया और एक ट्रे दिखाई जिसमें ग्रीन पाउच है और एक डब्बी खोली गई जिसके अंदर एक टॉप्स था। जैसे मेरी बेटी आई, मैंने उसे पूछा कि तुम्हारा एक टॉप्स किधर है। उसने मैं कल से ढूंढ रही हूँ। मैंने कहा ऑलरेडी खुदा ने मुझे दिखाया। तालियों की आवाज नहीं आ रही। हालेलुया। मैंने कहा मुझे हिजकिय्याह के एंजल ने, जिसने सैर करवाई, सैर करवाने के बाद उसने मुझे कमांड की कि इस पूरे शैतान के गोदाम को तूने आग लगा दे। और उसके बाद जब मैंने आग लगाई, जो वीडियो में मौजूद है, जब आप देखेंगे आप शॉक हो जाएंगे क्या रिएक्शन हुआ उसके बाद। हालेलुया। इस बच्ची ने ड्रीम देखा कि कोई कार आई है और उस कार में कोई बाबा है, इसको बाय फोर्स कार में बिठा कर ले गया और इसको कह रहा है कि पीछे नहीं देखना, तेरे पीछे जिन है। और कार उसके बाद एक घर में घुसी है और उस घर में एक स्मेल आई है। इसने कहा मुझे बड़ी बदबू आ रही है और उसके बाद इनको जमीन के नीचे ले गया। इसको नहीं पता चला कहां गई, पर मैं बता रहा हूं ये नीचे गई, क्योंकि इसने नक्शा सही बताया। इसने कहा वहां लोग बैठे हुए हैं, गोदाम है और ट्रे के अंदर सबज चीजें हैं। मैं समझ गया, मुझे बाकी हिस्सा नहीं दिखाया कौन है, पर खुदा मुझे डायरेक्ट गोदाम में लेकर गया और एक डब्बी खोली, उसमें टॉप्स था। उसने कहा टॉप किसी बच्ची का है, नाम नहीं बताया कौन है, और उसने कहा इस पूरे गोदाम को तुम्हें आग लगा देनी है। और उसी दिन मुझे नहीं पता था ये बच्ची डिलीवरेंस के लिए आई। हालेलुया। आई एम हियर, बताने की जरूरत नहीं है। ईस्टर वाले दिन कितने मौजूद थे सनराइजिंग सर्विस में? मैंने आकर आपसे पहले बताया कि खुदावन ने मुझे रात को दिखाया है एक ब्लैक कैट दीवार के साथ बंधी हुई है और एक बाबा सफेद कफन में यहाँ बैठा है योगा की फॉर्म में। और बच्ची बदुआ की चुप करके आराम से स्लेन हो गई। पर जब मैं यहाँ खड़ा था, पापा पीछे हाजिर हुए। कितनों ने देखा अपनी आंखों से? तालियों की आवाज नहीं आ रही। हालेलुया। हालेलुया। मिस्ट्री जब तक डिमिस्टिफाई ना हो, कोई भी इफाता चर्च के मैसेज चोरी करके प्रीच कर सकता है। लेट देम प्रीच। कोई भी टीचिंग चोरी कर सकता है,
और मिस्ट्री जब तक रूह कुदुस आश्कारा ना हो, किसी भी फैमिली की डिलीवरेंस नहीं होती। हालेलुया। जब तक, अब मैं कहना शौक नहीं टुडे, डायरेक्शन उस बंदे को ना दे जिसको आपके बारे में सीक्रेट रिवील नहीं हुआ, क्योंकि वो असर नहीं करेगा। आप किसी को 10 लाख का हदिया दे दे, 20 लाख का, वो 0/0 होगा, कुछ नहीं होगा। जब तक मिस्ट्री उस पर रिवील नहीं होगी तब तक डिलीवरेंस नहीं होगी। अगले संडे मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मेरा डिलीवरेंस सब्जेक्ट है, ना सिर्फ सब्जेक्ट है, मेरी मिनिस्ट्री है। मेरी फैमिली आई, अभी वो ऑनलाइन देख रही है, डॉक्टर सुशील की फैमिली गुजरांवाला के करीब इलाके से। आने से पहले खुदा ने रिवील किया, एक साड़ी वाली खातून है, आंखों से सही नजर नहीं आ रहा, गोल्डन सांप उनके घर में, और वो सांप सारी प्रॉपर्टी पैसा खा गया, और कोई बेटा था और वो मर गया। मिस्ट्री। जब वो आए, रिकॉर्डिंग है, उसकी भी रिकॉर्डिंग है, अभी मैं रिकॉर्डिंग करना शुरू हो गया, ताकि बहुत सारे लोग हैं उनको यकीन नहीं होता, क्योंकि जो सीक्रेट पोशीदा तोड़ा खुदा ने मरियम की चांस कॉलोनी फाता चर्च में रखा है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं, वो समझते कहानी है, इसलिए मैंने प्रूफ एविडेंस रखना शुरू कर दी ताकि उनको पता है। जब वो बंदे आए, वो कह रहा है लाहौर पाकिस्तान के कोई पास्टर को हमने छोड़ा, मेरे कपड़े, कमीजें, शलवारें, दुपट्टे मेरे बेटे के कटते हैं, कई सालों से, 22 साल से फैमिली प्रॉब्लम है, और गुजरे 2 सालों से उनके कपड़े भी कटते हैं। जब वो यहाँ आए, उनके आने से पहले खुदा ने मिस्ट्री पर आश्कारा कर दिया। हालेलुया। कैसे करते हैं? मैंने बताया वो खातून कौन है, तो कहने मेरी दादी है, मर गई है। मैंने कहा पर दादी का कनेक्शन खत्म नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया। गोल्डन सांप, मैंने कहा कितनों ने देखा? उसकी बीवी ने कहा मैंने देखा गोल्डन सांप। काला सांप नहीं कहा मैंने, पीला नीला मिट्टी वाला सांप नहीं कहा, गोल्डन सांप, एग्जैक्टली गोल्डन। उसने कहा मैंने देखा, और उसने मेरे ससुर को उठाकर दूर पानी में फेंका। पानी मतलब मुश्किलात, गुर्बत। हालेलुया। मिस्ट्री, पौलुस कह रहा है कि यीशु मसीह ने मिस्ट्री मुझ पर आश्कारा। हालेलुया। जब तक मिस्ट्री खुदा डिमिस्टिफाई ना करे, सैक्रिफाइस काम नहीं करता। समझ आ गया? जब खुदा कोई सीक्रेट रिवील करे कि दुश्मन कौन है या प्रॉब्लम कहां से आ रही है, तब वो सैक्रिफाइस भी काम करता है और वो डिलीवरेंस भी काम करती है। बड़े जेली लोग हैं जो मेरे नाम से या टीचिंग इफाता की पायनियर टीचिंग लेकर, चुरा कर देकर डायरेक्शन लेके काम नहीं होगा, क्योंकि मिस्ट्री जब तक रिवील ना हो बंदा आजाद नहीं। तालियों के बाद नहीं आ रहा। हालेलुया, हालेलुया। ये बात मैंने बड़ी देर पहले बतानी थी, पर आपको मैं आज रिवील कर रहा हूँ, क्योंकि इस सीजन में खुदा ने मुझे बताया बहुत सारे लोग आजाद होने वाले, बहुत सारे लोग आजाद होने वाले। उन मिस्ट्रियों में से एक बहुत बड़ी मिस्ट्री ये तकिया है। इसीलिए ग्रुप में मैंने लेट प्रॉफिट टीबी जोशुआ की तस्वीर शेयर की है एविडेंस के तौर पर, ताकि आपको पता चले कि कितना अजीम खादम जब वो पहाड़ पर दुआ करने जाता था, तकिया वो अपने घर से लेकर जाता था, और उसका तकिया कोई और नहीं यूज करता था, उसका तकिया उसके पास था। यीशु मसीह जब कश्ती में गया है, वो तकिया अपना घर से लेकर गया। हालेलुया। अगर ये तकिया घर से नहीं लेकर गया, इसने तकिए पर दुआ की है, उस पर तेल उड़ेला है, उसे सैंक्टिफाई किया। हालेलुया। और यहाँ हिजकिय्याह में कह रहा है कि तकिया ट्रैप की तरह है। आज मिस्ट्री आपके तकिए को ट्रैप की तरह इस्तेमाल करती है। आज आपके सबसे ज्यादा सीक्रेट आपकी बीवी के पास नहीं है, आपके तकिए के पास है। बहुत सारी औरतें अपने हस्बैंड से चोरी तकिए पर सर रख के
पता नहीं किससे बातें कर रही हैं। बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे लड़के बेडरूम में जब तक शादी नहीं हुई तो आ रहे, अब वो क्या बातें कर रहे हैं किसी को नहीं पता, उनके अलावा किसके पास सीक्रेट है? आपकी लाइफ के, आपके बेडरूम के, आपके सबसे ज्यादा सीक्रेट आपके तकिए के पास। तो शैतान बहुत ही क्राफ्टी है, बहुत ही इंटेलिजेंट है। आज आपके तकिए के ऊपर मॉनिटरिंग स्पिरिट काम करती है। तकिए के ऊपर आप जो भी बातें कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि मेरे अलावा और मेरी गर्लफ्रेंड के अलावा, मेरे अलावा मेरे बॉयफ्रेंड के अलावा, मेरे अलावा मेरे बिजनेस पार्टनर के अलावा कोई नहीं जानता। पर आपको बताओ, फेमिलियर स्पिरिट जो कि खानदान की स्पिरिट होती है और खानदान का रिकॉर्ड रखती है, वो जानती है। वो स्पिरिट उस इंफॉर्मेशन को ले जाकर आपके अगेंस्ट यूज करती है। वो मेरे आप अगले मैसेज में यूज किए सीखे सुनेंगे कि किस तरह लोग दुआ करते हैं, हदिया देते हैं, रोजा रखते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर आजाद नहीं होते। इनको बोलते हैं लॉफुल कैप्टिव, लीगल कैप्टिव। जब शैतान के पास आपके गुनाह का सबूत हो, आपके खानदान के गुनाह का सबूत हो, दुनिया का कोई भी मैन ऑफ गॉड, मैं चैलेंज करता हूं, दुआ करे आप डिलीवर नहीं हो जब तक वो कोर्ट रूम में आपको डील नहीं करेगा। तालियों की बात नहीं है। खुदा के अजीम खातम बहनी घरों में जाकर दुआ नहीं करते, पर वो कहते हैं जब मैं इसराइल से नया नया आया, मैं क्रिश्चियन कन्वर्ट हुआ, मैं मैन ऑफ गॉड बना, तो गलती से मैं किसी के घर दुआ करने चला गया। वो बहुत बड़े अमीर लोग थे, उन्होंने कहा कि आपने हाउस डेडिकेशन के लिए आना है। बिलीवर्स वाले सुन लें, सबसे खतरनाक दुआ किसी के घर जाकर करना है। मैन ऑफ गॉड सुन लें, सबसे खतरनाक दुआ कौन सी है? किसी के घर जाकर। तो बनीन बताते हैं कि मैं किसी के घर जाकर दुआ करने चला गया और उनके घर में कोई हांडी हुंडी पॉट शॉट, और बाय बर्थ बाय ब्लड लाइन में ये होती था। मैं बड़ा हिस्टोरियन और बड़ा नॉलेजेबल था, तो मैंने कहा ये क्या चीज है, तो इसको, और मैंने अपने हाथों से वो हांडी उंडी तोड़ दी। उन्होंने वहाँ जीसस का मज़बा बनाया, वहाँ कैंडलें लगाई, वहाँ खूबसूरत बुके रखे, और हमने दुआ की और मैं आ गया। अगली जैसे ही मैं घर वापस आया, मेरे आने से पहले दो शख्स फिजिकल फॉर्म में मेरे कमरे में थे। वो कह रहे थे, हु आर यू बेनिहिन, तू कौन है? ये मज़बा तोड़ने वाला, हम इस फैमिली को नहीं छोड़ेंगे। कहता मैं रोया कई दिन कई महीने कि ये क्या है, तो खुदामा ने मुझे ये साया 49 दिखाई। पढ़िए पढ़े आई पढ़ने। अभी मैं इसको कनेक्ट करूंगा अपने मैसेज के साथ। मैं अपने मैसेज की तरफ आ रहा हूं और फिर आप बरकत को रिसीव करेंगे। 49 की 24 को पढ़े। क्या जबरदस्त शिकार छीन लिया जाएगा? क्या जबरदस्त खुदा सवाल पूछ रहा है, क्या जबरदस्त शिकार छीन लिया जाएगा? आज ये उनके लिए भी जो कहते हैं डिलीवरेंस मिनिस्ट्री नहीं है, ये ड्रामा है, ये फेक है, ये हमें बेवकूफ बना रहे हैं, हमसे पैसे ले रहे हैं, लूट रहे हैं, उनके लिए पढ़िए। खुदा सवाल पूछ रहा है, क्या जबरदस्त से शिकार छीन लिया जाएगा? आगे। और क्या रास्तबाज के कैदी छुड़ा लिए जाएंगे? हाँ आगे। खुदा यूं फरमाता है कि जोरावर ऐसे मिलने लिए जाएंगे और वही का शिकार छुड़ा लिया जाएगा, क्योंकि मैं उससे जो तेरे साथ करता है झगड़ा करूंगा और तेरे फर्जंदों को बचा लूंगा। आगे इंग्लिश में पढ़े, ये समझ नहीं आ रही कुछ बातें, स्लो स्लो पढ़िए इंग्लिश में। ईसाया की 24 49 की 24। Something is happening. 49. Shall the prey be taken from the mighty? Shall the prey will be taken from the mighty? सवाल है, क्या जोरावर से शिकार छीना जा सकता है? हाँ जी बताएं कोई। तो तगड़ा है और उसके पास शिकार है, मगरमच्छी ले ले, उसके मुंह से शिकार निकाल सकते हैं? शेर के मुंह से शिकार निकाल सकते हैं? वो बड़ा पाइखान है, उसने खा लिया, बंदे को निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। पर अगर आप उससे ज्यादा, खुदा सवाल पूछ रहा है,
کہ کیا مائٹی سے کیپٹی پوزیس چھڑائے جا سکتے ہیں؟ آگے or the lawful captive delivered. اور دوسرا سوال ہے اور دا lawful captive. آج لوگ دو طرح کی ڈیلیورنس ان کو چاہیے. کچھ لوگ صرف زوراور کی شکنجے میں ہیں، اس کی قید میں ہیں، پر کچھ لوگ قانون کی قید میں lawful captive ہیں شیطان کے. یہ وہ لوگ ہیں جن پر آپ دعا کریں پھر بدرو آ جائے. دعا کریں پھر بدرو آ جائے. دعا کریں پھر بدرو آ جائے. چرچ چینج کریں پادری چینج کریں، جہاں مرضی چلے جائیں، جب تک وہ لا ڈیل نہیں کریں گے، کیونکہ وہ زوراور کے قیدی نہیں ہیں، وہ لا کے قیدی. اور اسپرچول لینڈ روحانی عالم لیگلسٹک ہے، جوریڈکشن کے ساتھ چلتا ہے، لا کے ساتھ چلتا ہے. تو جس کو قانون کی سمجھ نہیں ہے اور وہ قانون کا قیدی ہے. مثال کے طور پر میں اس پر ایک مثال دوں گا اور اپنے میسج کی طرف واپس آؤں گا. کہنا کو ہے اگر میرا کوئی موبائل میرے سامنے لے کر بھاگ جائے ٹیبل سے، ریسٹورنٹ میں بیٹھا ہوں، ٹیبل پر فون رکھا ہے، اٹھا کے بھاگے تو میں اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوں اور میں اس کو پکڑ لوں، کیا میں اپنا فون لے سکتا ہوں؟ ہاں لے سکتا ہوں. پر اگر وہ بندہ مجھ سے زیادہ تیز رفتار ہے اور گلی کی نکڑ پر وہ جا کر غائب ہو جائے اور میرا موبائل کسی کو بیچ دے اور جس کو بیچا وہ اسی ریسٹورنٹ میں آ کر میرے سامنے والے ٹیبل پر بیٹھ جائے اور میرے موبائل سے کھیل رہا ہو، کیا میں اس سے موبائل لے سکتا ہوں؟ وہ بھاگے گا؟ وہ نہیں بھاگے گا، کیونکہ اس نے وہ پے کر کے لیا. کیسے لیا؟ تو کیسے میں لے سکتا ہوں؟ اگر میں پولیس کو انوالو کروں گا، وکیل کو انوالو کروں گا اور وہ مجھ سے پروف مانگیں گے کہ اگر یہ تیرا فون ہے ثبوت دے، کہاں سے لیا، رسید دکھا، اس کے اندر کیا ہے، پاسورڈ کیا ہے، تصویریں کون سی ہیں، کیا ہے، کیسے ثابت کرو؟ جب تک میں ثابت نہیں کروں گا تب تک وہ ڈیلیور نہیں ہوگا. تو فائر سے وہ بدرویں جاتی ہیں جو زوراور کی قید میں ہیں، پر قانون سے وہ بدرویں جاتی ہیں جو قانون کی قید میں ہیں. اسی لیے بہت سارے مین آف گاڈ بیبی ڈیلیورنس ہیں، بیبی ڈیلیورنس پریچر ہے، وہ ان قیدیوں کو نہیں چھڑوا سکتے جو شیطانی قانون کی قید میں ہیں اور شیطان کے ڈیمن کے پاس تکیے کے ذریعے سے، کہنا کو آئے، تکیے کے ذریعے سے ان کے گناہوں کا ریکارڈ ہے. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. آپ اس تکیے پر سوئے ہیں اور کسی ڈیمن نے آ کر آپ سے سیکس کیا، مولیسٹ کیا، اس کا ریکارڈ، اس کا پروف کسی کیمرے میں نہیں ہے پر تکیے کے پاس ہے. اور تکیے نے ڈیمن کو دے دیا اور وہ ڈیمن کے پاس ہے. وہ لیڈی جس کا اسپرچول ہسبینڈ ہے، وہ جینٹ جس کا اسپرچول ہسبینڈ ہے، جہاں مرضی تیل گرے، جہاں مرضی فائر ڈالیں، جتنی مرضی پریئر کریں، ٹیمپریری ڈیلیورنس ہوگی، بدرو پھر آ جائے گی، کیونکہ اس کا ایویڈنس اسپرچول ریلم میں ڈیمن کے پاس. اس لیے خدا کہہ رہا ہے کہ زوراور کے قیدی چھڑائے جا سکتے ہیں. اس نے کہا ہاں. اس نے کہا کیا قانون کے قیدی چھڑائے جا سکتے ہیں؟ پڑھیں ذرا انگلش میں جملہ یہ والا. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. آج جو بھی آپ کا کوئی پروف ہے میں مٹانے والا ہوں. آپ کا کوئی بھی ایویڈنس شیطان کے پاس ہے میں ریموو کرنے والا ہوں. اگر آپ کے بزنس کی کوئی بھی نیگیٹو چیز اس کے پاس ہے، اس لیے بار بار بزنس پر اٹیک کر رہا ہے، بار بار میرج پر اٹیک کر رہا ہے، بار بار بچوں پر اٹیک کر رہا ہے، جو کوئی بھی ایویڈنس آپ کے بچوں کے اگینسٹ، آپ کی میرج کے اگینسٹ، آپ کے کاروبار کے اگینسٹ شیطان کے پاس ہے، میں ڈیلیٹ کرنے والا ہوں. 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 Shall the prey be taken from the mighty or the lawful captive delivered? اور the lawful captive delivered. نبی سے پوچھ رہا ہے کیا lawful جو قانون کے تحت شیطان نے کیپچر کی ہیں، ہتھکڑیاں لگائی ہیں، بیڑیاں ڈالی ہیں، اپنے جیل خانے میں ڈالا، کیا وہ آزاد ہو سکتے ہیں؟ تو اس کے پاس جواب نہیں ہے، کیونکہ نبی نہیں جانتا. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. تو ان میں سے ایک جو پاورفل پوائنٹ ہے وہ پلو ہے. میں اس کو اگلے سنڈے بیان کروں گا، پر یہاں سے میں سوئچ کرتا ہوں پلو پر. ایک ایویڈنس وہ راست بازوں کا تکیے سے لیتا ہے.
कहां से लेता है? आप जो चिटपिट करते हैं बातें, आपका पिल्लू आपकी टांगों के नीचे, आपकी गोद में, आपके पेट के नीचे, आपके सर के नीचे होता है। पिल्लू आपकी सीक्रेट बातें सुनता है, आपकी गंदी मंदी बातें, चालाकी, मक्कारी, साजिशें, प्लानिंग कौन सुन रहा होता है? इसलिए खुदा कह रहा है मैं तकिए के खिलाफ हूं। शैतान जानता है आज आपके घर की सारी चीजों में सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल जो चीज है वो आपका तकिया है, वो आपका तकिया है, वो आपका तकिया है। वो बातें सुनता है। क्या सुनता है? अपने साथ वाले को कहें वो बातें सुनता है। आज से कई साल पहले किसी शायर ने बड़ी अच्छी नज़म लिखी। बड़े नौजवान जो पतंगे थे वो उसको बड़ा लिखते थे, काश में तेरे हसीन हाथ का कंबल होता। और जब तू सोती मुड़मुड़ी से तकिया बनाकर अपने हाथ के नीचे वो तकिया रखती, मैं तेरे कान से लग के कई बातें करता। अब वो कंगन के ऊपर लिखा हुआ है, असल में कंगन से बातें नहीं हो रही। अगर कंगन से बातें हो रही हैं तो तकिया सुन रहा। जोरदार तालियां दें। कौन था वो शायद बड़ा मशहूर हुआ था? वसीशा, वेरी गुड वेरी गुड। तो तकिया आपके सीक्रेट जानता है। एक मैन ऑफ गॉड, बड़े अजीम मैन ऑफ गॉड है, उनका नाम नहीं लूंगा। उनके बेडरूम में उनको होटल में कमरा नहीं मिला, जल्दी से छोटा कमरा मिला। तो अचानक कुछ लोग मिलने के लिए आ गए और मिलने वालों के साथ एक और भी घुस गया कमरे में। वो जादूगर था। तो एक कुर्सी थी कमरे में और एक टेबल था और एक बेड था। तो जब कमरे में जगह कम होती है हम लोगों को बेड पर बिठा देते। ये हमारा कल्चर है। चढ़ जो मंजिल खुले होकर बैठे, हम कहते इजी हो जाए, चढ़ जो मंजिल। वो बैठ गए, चौकड़ियां मार दी। अब वो बंदा कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसने कहा आप भी इजी हो जाए, ये मेरा पिल्लू ले ले। मैन ऑफ गॉड कह रहे हैं कि मैंने गलती से अपना तकिया उस मेहमान को दे दिया, क्योंकि अभी मैं लैंड हुआ था, अभी मैंने बैग रखा और वो सारे आ गए और मुझे समझ नहीं क्या करना, मैंने कमरे में बुला दिया। तो कहता कि वो बंदा यहाँ एक कुशन पड़ा होगा 4 कोनों वाला, देखें स्टाइल। अब वो बंदा बैठा है कमरे के अंदर, उसने चारों कोनों पर इधर कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। ऐसे घुमार, ऐसे घुमार, ऐसे घुमार, ऐसे घुमार। कभी इसको ऐसे रख रहा है, कुछ पढ़ रहा है, फिर घुमा रहा है, फिर यूं रख लिया। अब वो समझ रहा है पता नहीं स्टाइल है, मेरी बातें को और से सुन रहा है और उसने यूं पकड़ा हुआ है और कुछ पढ़ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मैन ऑफ गॉड बड़े नामी है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा। जैसे ही वो लोग लेफ्ट हुए, वो थके हुए, तो उसने कमरा भी पाक नहीं किया, वही तकिया अपने सर के नीचे लिया। बूम, जैसे ही लिया 2 स्पिरिट्स उनके कमरे में आ गए। उनके इधर क्या करने आया? Who are you? कौन है तू इधर? क्या करने आया? तो जब वो तकिए पर कुछ बोल रहा था, कुछ इनकल्टेशन कर रहा था, एन्चांटमेंट कर रहा था, किसी ने तवज्जो नहीं दी, उसने भी नहीं। पर जब वो सोया, जैसे ही 2 डीमन आए, बूम, वो डर के ख्वाब से बाहर आ गया। उसके बाद उसने कमरा पाक किया। हालेलुया। आपको नहीं पता आपने अपना तकिया किससे शेयर किया। माय क्वेश्चन, किसने तुझे तकिया गिफ्ट किया? नंबर 1, किसने तेरा तकिया बनाया? नंबर 2, किससे तूने तकिया शेयर किया? नंबर 3, नंबर 4, कौन कौन लोग एक ही तकिया इस्तेमाल कर रहे हैं? नंबर 5, आखिरी सवाल, कभी तकिए को पाक किया है? कभी तकिए पर दुआ की है? अगर नहीं तो तेरा तकिया तेरे लिए ट्रैप है। जितने भी आज तूने ख्वाब देखे हैं, ख्वाब आपकी डेस्टिनी को कनेक्ट करते हैं। उसने ख्वाब देखा और वो वजीर बन गया, सूरज चांद सितारे उसके आगे झुक रहे हैं, ख्वाब उसको कहां ले गया। पर आप जो ख्वाब देख रहे हैं, आप जुए में पड़ गए, आप कैद में चले गए, आप बीमार हो गए। आज तकिया डिफरेंट किंगडम से कनेक्ट करता है। जैसे मैंने बताया, तकिया ट्रैप है और वो ट्रैप जरूरी नहीं कि किसी एक किंगडम से हो, मुख्तलिफ किंगडम का हो सकता है। मे बी अगर आपने मोलेस्टेशन वाला ख्वाब देखा है तो वो तकिया वाटर किंगडम से जुड़ा हुआ है।
اگر کوئی چیز آپ کے پیچھے بھاگ رہی ہے اور آپ آگے کے بھاگ رہے ہیں اور چیزیں آپ کے پیچھے بھاگ رہی ہیں یا آپ اڑ رہے ہیں خود کو اڑتا دیکھتے ہیں تو وہ تکیہ وچ کرافٹ کنگڈم سے جڑا ہوا ہے. اگر آپ پانی میں ڈوب رہے ہیں پانی میں تیر رہے ہیں یا کوئی آپ سے ریپ کر رہا ہے یا آپ کسی کا ریپ کر رہے ہیں وہ تکیہ واٹر کنگڈم سے جڑا ہوا ہے. اگر آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں شرائن پر خوشبوؤں پر جیسے بچی نے دیکھا کسی نے اس کا پہلو اس کی لائف کو کسی دربار سے کنیکٹ کر دیا. ہاللیلویا ہاللیلویا. آپ کا تکیہ آپ کو مرے ہوئے شخص نظر آتے ہیں ڈیڈ رشتہ دار ملتے ہیں مرے ہوئے بہن بھائی انکل آنٹیاں کزن ملتے ہیں مرے ہوئے لوگ. آپ کا تکیہ کسی نے ہیل کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوگا. آپ کا تکیہ کسی بھی ڈائمینشن سے کنیکٹ ہے. آج میں ڈسکنیکٹ کرنے والا ہوں آج میں ڈسکنیکٹ کرنے والا ہوں آج میں شیطان کو ایکسپوز کرنے والا ہوں. تو ورڈ پلو سے خدا نے مجھے مسٹری دی. یہ پلو نہیں ہے یہ پورٹل ہے. کیا ہے پورٹل. پورٹل کیا ہوتا ہے ایکسس پوائنٹ ہوتا ہے جہاں سے ہم ایک ورلڈ سے دوسری ورلڈ میں ٹریول کرتے ہیں. یہی حزقیل اس نے کہا it makes spirit to fly it makes spirit to fly it makes soul to fly. یہ حزقیل کہہ رہا ہے حزقیل 13 میں کہ یہ آپ کی سول کو فلائی کرواتا ہے اور دوسرے ورلڈ سے کنیکٹ کرواتا ہے. اور یہی میں نے بتایا. ہاللیلویا. تکیے پر سویا ہے یعقوب پر وہ ادر ورلڈ میں پہنچ گیا جہاں سیڑھی ہے جہاں اینجل ہے پر جہاں یہوہ خدا ہے. تکیے پر سویا یسوع. کشتی میں پانی آ گیا کشتی میں طوفان آ گیا کشتی میں ہوائیں آ رہی ہیں زلزلہ بہت کچھ آیا ہے پر وہ ادر ورلڈ میں آلریڈی ٹریول کر گیا. تکیہ پورٹل ہے ایکسس پوائنٹ ہے گیٹ ہے پاتال کا مرائن ورلڈ کا شرائن ورلڈ کا کینکروائن ورلڈ کا. پر اگر تکیہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے اندر ہے آج کے دن کے بعد وہ تاریخی کے استعمال میں نہیں یہوہ کے استعمال میں ہوگا یسوع کے استعمال میں ہوگا. جیسے آپ تکیے پر سر رکھیں گے آپ سکون کی نیند سوئیں گے آپ ہیون کی سیر کریں گے. میں بھی تکیے پر سوتا ہوں پر میں آپ لوگوں کے سیکرٹ دیکھ رہا ہوتا ہوں. جیسے میں نے بتایا سنڈے کو جو بچی آئی جوڑا باز سے جو فیملی آئی یہ 3-4 دنوں کے واقعات ہیں جسٹ 3 days کے واقعات ہیں. ایون ایسٹر والے دن اس بندے کو میں ایکسپوز نہیں کروں گا میں نے اس کو اریسٹ کر لیا چرچ کی چگلیاں بار کرا. میں نے دیکھا ایسٹر والے دن چچڑ میری انگلی پر کاٹ گیا. ایون میں چیخ مار کر اٹھا خواب سے میں نے پریئر کرنا شروع کی کہ کون چچڑ ہے. خدا نے مجھے ریویل کر گیا وہ چچڑ کون ہے. اور ود ڈیو ریسپیکٹ بس بندے کو ایکسپوز نہیں کروں گا بٹ I know that I must hear. میں ریکارڈنگ ویڈیو ہے لوگ لائیو دیکھ رہے تھے جب میں اپنے پروگرام میں سیالکوٹ گیا ہوں. میسج شروع کرنے سے پہلے میں نے بتایا گراؤنڈ کے اندر رنگ کھیل رہے ہوئے ہیں اور میں اٹھا کر پھینک رہا ہوں وہ پھٹ رہے ہیں. I must hear. میں ویسے اپنے معاشرے کی رسپیکٹ میں حیا میں کچھ چیزیں نہیں میں بولتا کیونکہ کچھ چیزیں ڈیمیج لے کر آ سکتی ہیں ڈسٹروائے کر سکتی ہیں. خدا مجھے ریویل کر رہا ہوں. ان لوگوں کا ایک نوکر تھا انہوں نے اب جا کے اس کا چہرہ دیکھا. لانگ ٹائم جب وہ ان کی گود میں بیٹھتا تھا ان کے منہ سے نوالے کھاتا تھا میں نے اس وقت اس نوکر کو دیکھ لیا کہ آپ کا چور ہے. اور ان کے ہسبینڈ کو بڑی دیر بعد پتا چلا اور جب میں نے بتایا ان کو وہ بات ہضم نہیں ہوئی. لانگ ٹائم خدا نے مجھے اس کا چہرہ بتایا کہ ان کے ساتھ چیٹنگ کر نام نہیں میں بتاؤں. ہاللیلویا. ان سے نہیں کر پوچھ لینا کون تھا. آلریڈی خدا مجھے ریویل کراتا ہے. آلریڈی ہاللیلویا. تو خدا جب تک مسٹری انویل نہ کرے لوگ ڈیلیور نہیں ہوتے. آپ کے گھروں میں آپ کا ہی تکیہ آپ کے ہی گھر میں پاتال میں استعمال ہو رہا ہے. آپ کا ہی تکیہ
दरबार पर इस्तेमाल हो रहा है, आपका ही तकिया वाटर किंगडम में इस्तेमाल हो रहा है, आपका ही तकिया विचक्राफ्ट किंगडम में इस्तेमाल हो रहा है, पर आज जहां भी इस्तेमाल हो रहा है, मैं डिस्कनेक्ट करने वाला हूं, 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 मैं डिस्कनेक्ट करने वाला हूं। और जो कोई भी सीक्रेट उसने एविडेंस के तौर पर आपके बच्चों का, आपके हस्बैंड का, आपकी बीवी का आपसे चुराया है, और उन डीमन ने लीगली तौर पर आपको अपना कैदी, अपना गुलाम बना लिया है, और वो बदरुए दुआ के बाद, रोजे के बाद, प्रेयर के बाद, फास्टिंग के बाद, डिलीवरेंस के बाद भी नहीं पीछा छोड़ रही, मैं वो सीक्रेट, वो एविडेंस डिलीट करने वाला हूं, डिलीट करने वाला यीशु के नाम से, 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 डिलीट करने वाला यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तकिया स्पिरिचुअल है, अपने साथ वाले को कहें तकिया बहुत स्पिरिचुअल है, बोले तकिया तेरे लिए ट्रैप बन सकता है। आज जब तकिया सर के नीचे रखते हैं, जब बैल खड़ा होता है तो उसकी गर्दन पर जुआ रखते हैं, और जब आप लेटे हो, जब तकिया नीचे है, ये स्पिरिचुअल योग है। आज बहुत सारे लोग अंडर द योग है, जरूरी नहीं कि कोई हल, कोई ऐसे जो बैल के कंधे पर रखा वो आपके कंधे पर रखा हो, इवन आपका पिल्लू आपका योग बन सकता है, पर मैं योग ब्रेक करने वाला हूं। आज इस ऑयल को मैं लेकर आया हूं, हर एक बंदे के पिल्लू को मैं अनॉइंट करूंगा, और वो पिल्लू आपको रिलीज करूंगा। मैं डिक्लेयर करता हूं, हर एक जुआ टूट जाएगा, हर एक जुआ टूट जाएगा, बहुत सारे कैदी आजाद होंगे। अगर वो आप हैं, आपका आमीन ऊंचा होगा, अगर वो आप हैं, आमीन ऊंचा होगा, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मैं डिक्लेयर करता हूं अपोजिट। जब आप अपने पिल्लू पर सर रखें, जब आप अपने पिल्लू पर सर रखें, जैसे ही आपका हेड इससे कनेक्ट हो, विजडम एंटर हो, आइडिया एंटर हो, आप थर्ड हेवन में एंटर हो। पालूस की तरह कहें, मैं रूह में किसी को जानता हूं जो तीसरे आसमान पर उठा लिया गया। आप जब अपने तकिए पर सर रखें, आप थर्ड हेवन पर हो, आप आसमान की सैर करें, आप आसमान की सैर करें। खुदा आपको ग्रेस से मालामाल करे, खुदा आपको फेवर से मालामाल करे, खुदा आपके दुश्मन एक्सपोज करे, खुदा आपके दुश्मन एक्सपोज करे, यीशु के नाम से। हालेलुया। राबल किधर है? राबल चला गया। राबल भाई साहब उठकर इसने मुझे ख्वाब बताया, कह रहा डैडी आपने मुझे और किसी एक और बंदे को चर्च से निकाल दिया, मैं बड़ा परेशान, मैं रोया हूं, मुझे और मोहसिन को। मैंने कहा ये तुम नहीं, कई और लोग हैं, आई नो दैट, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। राबल ने मुझे कॉल की, इवन मेरे चर्च के लोगों की आंखें ओपन है। जरा ये सोचे, इवन मेरे चर्च के लोगों की आंखें ओपन है, जो आपको सिखा रहा है उसका लेवल क्या होगा। रिकॉर्डिंग है। हालेलुया, हालेलुया। ऑलरेडी राबल रो रहा, परेशान है, कह रहा डैडी आपने और मुझे और मोहसिन को निकाल दिया। मैंने कहा बेटा आप नहीं है, कुछ और लोग होंगे। आई नो दैट, बट मैं मेंशन नहीं करना चाह रहा। आई नो दैट, आई नो दैट। मैंने कहा जब टाइम आएगा यू विल नो। रिकॉर्डिंग है, इवन राबल की कॉल की रिकॉर्डिंग है, क्योंकि मैंने कहा मैंने रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दी है। इवन जो मैं एक्ट करता हूँ रिकॉर्ड करता हूँ, जो मैं ऑडियो करता हूँ रिकॉर्ड करता हूँ, जो मैं एक्शन करता हूँ रिकॉर्ड करता हूँ, इवन ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, क्योंकि आपको पता हो आई एम अ सीयर, आई नो ऑलरेडी। तो जैसा पहले मेरे कमरे में 8 फुट ऊंचा एक काला नाग आया, मैं अपने बीवी बच्चों के साथ लेटा हुआ था। इतनी सी स्टिक खुदा ने मुझे दी, मेरी हाइट 8 फुट नहीं है, और जितने फुट तक मेरा ये हाथ जाता है, मैंने उसकी गर्दन पर हिट किया और उस नाग की गर्दन तोड़ दी। और उसके बाद जो अगला हिस्सा था, मैंने पिछले हिस्से की परवाह न की। मैंने इतनी, मतलब जैसे वो बुश लोग होते हैं, बुश के अंदर रहते हैं झाड़ियों में, वैसी जंगली अमेज़न के जंगलों में रहने वाले, जब उन पर शेर या सांप हमला करते, वो अपने बीवी बच्चों की हिफाजत के लिए वैसी हो जाते हैं कि क्या होगा,
جب وہ 8 فٹ لمبا کالا ناگ میرے کمرے میں آیا میں نے اس کے ٹکڑے کر دیے. اس کا جو اگلا حصہ تھا تقریباً کو 1.5 فٹ کا تھا, میں نے اس کے کچمبر بنا دیے. اس کے بعد میں نے دعا کی. خدا نے کہا نہیں, there is a person is going to deceive you very soon. I'm going to expose. تعلیم کے بعد نہیں آ رہی. میٹھا آڈیو ویڈیو ڈیٹ ٹائم کے ساتھ میرے موبائل میں. I am a seer. مجھے بعض اوقات آپ کے کریکٹر, آپ کے بہن بھائیوں کے کریکٹر نظر آ رہے ہوتے ہیں, پر معاشرے کی وجہ سے میں خاموش ہوں. معاشرے, کلچر کی وجہ سے, رسپیکٹ کی وجہ سے. I know already what is about to happen. آمین. ایویڈنس پر ایویڈنس ہے, میں بہت ساری چیزیں آپ کو بتاؤں گا, لیکن میں تکیے کے بارے کو, تکیے کو ایکسپوز کر رہا ہوں. تکیہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کی لائف اور ڈیسٹنی کو برباد کر رہا ہے. ہاللیلویا. آگے چلتے ہیں. Can I go more higher? اوکے, پڑھی گا ایوانجلسٹ کا آپ پڑھیں, پاسوزما آپ نکال لیں, مرکز 4:38 آپ نکال لیں, پہلا سامر 19 باب 13 سے 16. اور وہاں 3 تربوز ہیں, دوانے. ایک تربوز کو میں نے کاٹا, ٹیسٹ پھیکا نکلا ہے. دوسرے کو کاٹا, کڑوا نکلا ہے. پر ایک بہت بڑا تربوز ہے, اس کو کھاٹا ہے, وہ بہت میٹھا نکلا. I know the person, I know the place. سمجھ آ رہی ہے. پر بعض اوقات یسوع کو آلریڈی, کیا یسوع کو نہیں پتا تھا یہودا مجھے پکڑوائے گا؟ Tell me, کیا وہ نتھانیل کو کہہ سکتا ہے کہ تجھ میں کوئی عیب نہیں, تو راست باز اسرائیلی ہے, یہودی ہے, تجھ میں کوئی عیب نہیں ہے. جب تو درخت کے نیچے, زیتون کے نیچے گھٹنے ٹیک کر دعا کر رہا تھا, میں نے تجھے دیکھ لیا. جو نتھانیل کو دعا کرتے دیکھ سکتا ہے, کیا یہودا کو نہیں دیکھ سکتا کہ وہ اس کو بیچ دے گا؟ سم ٹائم خدا آپ کو دکھاتا ہے اور دانیل کی طرح کہتا ہے رویا کو سیل کر, رویا کو سیل کر. ہاللیلویا. اس کو ڈسکس نہیں کر, but I know already. ہاللیلویا. ہاللیلویا. I know already. خدا یہاں 17 لوگوں کو بہت امیر کرنے والا ہے. نوٹ کر لیں, خدا یہاں بیٹھے ہوئے 17 لوگوں کو بہت افرت کرنے والا ہے. شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار مینوپولیشن ہے, اس کی چال میں نہ. جیسے آلریڈی میری وائف نے مائک پکڑتے کہا, ان کو میرا میسیج نہیں پتا تھا, اور خدا نے ان کو کہا کہ اگر جو بھی بات دل میں لے کر آئے ہیں اگر وہ ڈیلیٹ کر دیں گے, اگر وہ شیطان نے ڈالی ہے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ برکت کو رسیو کریں گے, آپ برکت کو رسیو کریں گے, آپ برکت کو رسیو کریں گے. خدا آپ کو بریک تھرو دینے والا ہے. سنیے گا, سنیے گا. اور میکل نے ایک بت لے کر پلنگ پر لٹا دیا, اور بکریوں کے بال کا تکیہ سرہانے رکھ کر. آمین. یہیں پر کس نے تیری غیر موجودگی میں تیرا بیڈ بنایا, بیڈ میکنگ, بستر بچھایا؟ کون سی کام والی نے, کون سی چاچی نے, کون سی تائی نے, کون سی ماسی نے, پھوپھی نے تیرا پیچھے سے بستر درست کیا, جس کو بیڈ میکنگ کہتے ہیں. اردو میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, اردو میں کیا کہتے ہیں؟ وہ چادر جو سیدھی کرنا, بستر بچھانا, اور بستر بچھانا, اردو میں بستر بنانا. اوکے, بیڈ میکنگ انگلش میں کہتے ہیں, مجھے نہیں پتا اردو میں کیا کہتے ہیں. تو میکل کیوں اس کے بچہ نہیں ہوا؟ کہنا کو ہایا. میکل ساؤل کی بیٹی تھی, لیکن داؤد سے چوری وہ اس سٹیچو کی ورشپ کرتا, اسی لیے اسے یہوہ کی ورشپ پسند نہیں. اور اس نے اپنے بیٹے کے بستر پر, اپنے ہسبینڈ کے بستر پر سٹیچو رکھ دیا. جس بستر پر آپ سوتے ہیں اس بستر پر کوئی بھگوان کا سٹیچو رکھ دے, کوئی مندر کی مورتی رکھ دے, کیا ہوگا؟ ٹیل می, یو ایکسپلین, کیا ہوگا؟ وہ گاڈ آپ سے رات کو خواب میں آپ کے ساتھ سوئے گا.
हालेलुया। क्यों दाऊद की जिंदगी मारे मारे भटका भटका फिरा है? क्योंकि उसके पीछे चोरनी जादूगरनी कोई और नहीं, उसकी अपनी वाइफ थी। हालेलुया। तकिया रख रही है, जब भी बिस्तर पर सोए 1 मिनट लेकर उस पर दुआ करें। क्या करें? दुआ करें। हालेलुया। किसने उसको नापाक किया, कंटामिनेट किया, पोल्यूटेड किया? जब वो नापाक है, कंटामिनेटेड है, पोल्यूटेड है, डीमन उस बिस्तर पर विजिट करेंगे। जब भी कभी होटल में जाएं, आपको नहीं पता, आपसे पहले उस कमरे में किसी का मर्डर हुआ, किसी का रेप हुआ, किसी के साथ जुल्म हुआ, कोई डिप्रेशन में आई, यू डोंट नो। पर जब आप उस कमरे में एंटर होंगे, अगर आपने तकिए पर कमरे पर दुआ नहीं की और आप सो गए हैं, आप उस बंदे के सोल के साथ सोल टाई कर लेंगे और आप उसके ड्रीम आप देखेंगे, उस बंदे के जो आपसे पहले कमरा छोड़ कर गया। समझ आ गया? तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड बहुत रियल है। रूहानी दुनिया जिस्मानी दुनिया को कंट्रोल करती है। क्या करती है? रिपीट करता हूं मैं, रूहानी दुनिया जिस्मानी दुनिया को। क्या साइन है? एक साइन लिख लें, दिल के ऊपर, गत्ते के ऊपर, रिपीट करें। कैसे पता चलेगा मामला जिस्मानी नहीं रूहानी? जब आप किसी मैटर के ऊपर, जब आप मर्द किसी बिजनेस पर, किसी काम पर अपना पूरा जोर लगा चुके, पूरी अकल, पूरा पैसा लगा चुके, उसके बावजूद वो काम ना मूव करे, तो वो रुकावट रूहानी जिस्मानी नहीं रूहानी, और वो मामला जिस्मानी नहीं है रूहानी। अगर आपने पूरी अकल लगा दी, आपकी शादी में अमन ही नहीं आ रहा, आपकी शादी मियां बीवी आपने बड़ी दफा पंचायतें करवाई है, काउंसलिंग करवाई है, फिर भी आपकी मैरिज में सुकून नहीं है, समझ लें कि मैरिज में जो अटैक है, जो प्रॉब्लम है, वो काउंसलिंग और जजमेंट का नहीं है, कनेक्शन का नहीं है, रूहानी है। अगर आपने बिजनेस पर सारा पैसा, सारा नॉलेज, सारे कनेक्शन लगा दिए, बिजनेस फिर गिर गया है, मामला जिस्मानी नहीं, मामला रूहानी। आपने बच्चों पर पूरी फीसें लगा दी, 2-2, 3-3 जॉब करके लगा दी, बच्चों को फैक्ट्री भी लगाई है, बच्चों को जूते भी लगाए हैं, और बेलनों से भी मारा है, बाप ने भी बेल्टों से मारा है, दोनों ने मार लिया, पैसे भी लगा दिए, अच्छा स्कूल भी कर दिया, बच्चे फिर नहीं पढ़ रहे। बच्चों का कसूर नहीं, बच्चे निकम्मे, नकारा, अड़ियल, ढीठ और एजुकेशन में जीरो हो गए हैं। बच्चों का कसूर नहीं है, उन पर जुल्म करना बंद करें, मैटर को डील करें। मामला जिस्मानी नहीं, मामला रूहानी। कोई आपके बच्चों की डेस्टिनी के पीछे है, वो आपके बच्चों को तबाह और बर्बाद करना चाहता है। पर जो कोई भी आपके बच्चों के पीछे है, मैं उसे बर्बाद करता हूँ यीशु के नाम। जो कोई भी आपके बिजनेस के पीछे, मैं उसे बर्बाद कर देता हूँ। जो कोई भी आपकी मिनिस्ट्री के पीछे, मैं उसे बर्बाद कर देता हूँ। जो कोई भी आपकी हेल्थ के पीछे, मैं उसे बर्बाद कर देता हूँ। जो कोई भी आपके कारोबार के पीछे, मैं उसे बर्बाद कर देता हूँ यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ आती? अपने साथ वाले को के मामला रूहानी है। बोले आज से तकिए को सीरियस लेना है, आज से नाइट प्रेयर को सीरियस लेना है। जो लोग बाइबल की रूह से, बाइबल की रूह से लिखा है शाम हुई और सुबह हुई, सो पहला दिन। रिपीट करें, क्या लिखा है? शाम हुई और सुबह हुई, सो असल में दिन का आगाज सुबह से नहीं, दिन का आगाज शाम से। तो अगर आप अपने गलगोरियन डे पर, ये गोरे का यानी ये मिस्र से, इजिप्ट से निकला है, कि उन्होंने सूरज की वजह से इसको दिन और रात का नाम दिया, अपोजिट कर दिया, कैलेंडर बनाया, ग्रेगोरियन टाइम टेबल ग्रेगोरियन कैलेंडर है। इन शॉर्ट ये कि अगर आप अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, अपनी राहत पर हुकूमत करें। 15 मिनट से 10
10 मिनट से 20 मिनट से रात को दुआ करें। 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 3 बजे, जब भी आपको जाग आए या जब आप जाग रहे हैं सोने से पहले, जब आप दुआ करेंगे, वर्शिप करेंगे। बहुत आप टिकटॉक देखते हैं, बहुत आप रीलें देखते हैं, उंगलियां घिस गई हैं बहुत सारी बेटियों के अपनी जवानी में, तो अंगूठे के प्रिंट गायब हो गए हैं। कितनी रील देखती हैं, रील 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 रील, सारा दिन ऐसे ही होता रहता है, फ्लिप 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 फ्लिप। थोड़ी देर रोक के रात को अपनी उंगलियों को दुआ करें, आधा घंटा घंटा, और सो जाए। आप देखेंगे अपनी लाइफ चेंज हो जाएगी, अब लाइफ चेंज हो जाएगी। आने वाला मंत्र आपकी फेवर और मर्सी का मंत्र। आने वाला मंत्र मैं आपको फेवर और मर्सी की केमिस्ट्री और मिस्ट्री ओपन करूंगा, और आप देखेंगे दुनिया की कोई ताकत इफाका के लोगों को बरकत से रोके। हालेलुया। जो लोग रात को दुआ करते हैं और सोते हैं और वर्शिप करते हैं और अपने तकिए के मिस्ट्री को समझते हैं, वो लोगों को आने वाले दिन का पहले पता होगा। कौन मिलने आ रहा है, क्यों मिलने आ रहा है, किस लिए आ रहा है, क्या एजेंडा है उसका, क्या वर्ड बोलेगा, इवन वर्डिंग तक पता होती है। मेरे साथ ऐसे होता है। आमीन आमीन। मैं आपको अपना सीक्रेट देता हूं, जब आप दुआ करेंगे खुदा आपको आने वाले दिन की रूटीन बताएगा, आने वाले लोगों की, आने वाले हालात की, जाने वाली जगह पर। आमीन। मीकल, कौन है मीकल तेरी लाइफ में? कौन है अंकल, कौन है आंटी जो तेरे बेटे को बना रही है और जब तू सोता है तेरी जिंदगी में चैन होता है? आज के दिन के बाद किसी को अपने बिस्तर को टच ना कर लें, खास तौर पर अपने तकिए। आमीन। अलीशा की नबूवत के बाद शुनेमी औरत का बेटा जो सर दर्द से मर गया, उसने ले जाकर मैन ऑफ गॉड के पलंग पर लेटा दिया, और जो तकिया मैन ऑफ गॉड लेता था उस तकिए पर उसका सर दर्द। हालेलुया। वो बच्चा जिंदा हो गया। हालेलुया। वो बच्चा क्या हो गया? क्योंकि वो हेड पेन से मरा, माइग्रेन से मरा, पर जब उसने उस माइग्रेन को, हालेलुया, आप बहुत सारी माइग्रेन किलर गोलियां खा रहे हैं, पैनाडोल, सनफ्लेक्स, फला फला फला, ओनिस्टॉन, ये वो, आपको कोई पिल खाने की जरूरत नहीं है जब आप अपने दिलों पर दुआ करें। आपको समझ नहीं आ रहा? अपने साथ वाले को क्या नहीं, कोई पिल खाने की जरूरत नहीं है जब तुम पिलों पर दुआ करोगे। हालेलुया। पिल वो खाते हैं जो अपने पिल्लू को डील नहीं करते। आपको थकावट, वो थका हुआ था, कहना वो है। जब बंदा इतनी दूर भाग रहा है जानवरों की तरह के कहीं पीछे ना आ जाए, और वो जिस्म में पेन है, दर्द है, उसने पेन किलर नहीं ली, उसने पिल्लू लिया। अपने साथ वाले को कह दे, तुझे पेन किलर की जरूरत नहीं, प्रोफेटिक पिल्लू की जरूरत है। वो पिल्लू तैयार है, तुझे पेन किलर की जरूरत नहीं है। बोले याकूब की तरह, तुझे पेन किलर की जरूरत नहीं है, प्रोफेटिक पिल्लू की जरूरत है। जैसे वो तकिया उसने लिया, उसकी बॉडी पेन खत्म हो गया, उसकी थकावट चली गई, किसी ने उसको आकर मसाज नहीं की, फौरन वो ठीक हो। और फौरन लिखा है कि वो इट मेक यू फ्लाई, वो तकिया आपको दूसरी दुनिया से, दूसरे वर्ल्ड से कनेक्ट करता है। अगर आपने उस पर दुआ की है तो यकीनन वो खुदा से कनेक्ट करेगा। अगर आपने दुआ छोड़ दी है तो वो आपको किसी और किंगडम से कनेक्ट करेगा। पर आज आपके तकिए को मैं हेवन में कनेक्ट करने वाला हूँ, हेवन में कनेक्ट करने वाला हूँ, हेवन में कनेक्ट करने वाला हूँ, हेवन में कनेक्ट करने वाला हूँ। जो कोई भी तकिया आपके अगेंस्ट यूज कर रहा है, जलकर भस्म हो, जलकर भस्म हो।